In this video, we will study about different types of plastids, how they are present, how do they work, and what are chloroplasts, what is the structure of the chloroplast, and how pigments are present in the chloroplast. So to begin with, first we'll discuss types of the plastids. Plastids are usually found in all plant cells and in protists, especially in euglenoids. प्रोटिस्ट में जो यूग्लिना है उसमें हमें प्लास्टिड्स मिलती हैं. Depending upon the type of the pigments, we can divide the plastids into three types. अगर पौधे का रंग ग्रीन है या कोई पत्ता ग्रीन है, स्टेम ग्रीन है, तो उसमें प्रेजेंट होंगी क्लोरोप्लास्ट. इफ़ इट इज़ कलर्ड, लाइक इफ़ वी सी गाजर या हम कैरेट जिसको बोलते हैं, जो कलर्ड है उनमें होंगे क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट. तीन कैटेगरीज आ गई हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. अब जो क्रोमोप्लास्ट हैं दे आर यूजली रिच इन फैट सॉल्युबल पिगमेंट. जैसे इसमें होते हैं कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स, टुगेदर दे आर कॉल्ड एज कैरोटीनॉइड्स. सो दे गिव येलो कलर. आपने देखा होगा कुछ पत्ते या फ्लावर्स जो हैं येलो कलर के होते हैं, ऑरेंज कलर, रेड कलर. सो ये जो ऑरेंज, रेड और येलो कलर होता है प्लांट्स में, दैट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स, टुगेदर कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल्स. Now next is category is leucoplast. Now these plastids are not colorless. Sorry, these are colorless. They don't have any color. They can be of various shapes and sizes and they're rich in nutrients. अब इसमें जो ल्यूकोप्लास्ट है उसमें आगे कैटेगरीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे. एमाइलोप्लास्ट्स. यूजली ये जो प्लास्टिड्स हैं इनमें क्या होगा, दे विल स्टोर स्टार्च प्रेजेंट इन द पोटैटो. मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाती हूँ ऐसे करके, राइट. तो ऐसे करके इसमें स्टार्च स्टोर हो जाता है. देन नेक्स्ट इज इलियोप्लास्ट्स, जिनमें स्टोर होता है ऑयल एंड फैट, राइट. अब हमने देखा है मेज ग्रेन हो गया या वीट का ग्रेन हो गया, जिनमें कैलुरॉन लेयर भी होती है जिसमें प्रोटीन्स होते हैं. सो एलिरोप्लास्ट्स दे विल स्टोर द प्रोटीन. सो एमाइलोप्लास्ट दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स, इलियोप्लास्ट they store oil and fats, and elyroplast they are rich in protein. So leucoplast, they are colorless plastids of various sizes and shapes. They're rich in the nutrients. They help in storage of carbohydrate, oil and fat, and proteins. Now if we talk about now green pigments, right, which help in photosynthesis also. Now what is photosynthesis? It is the manufacture of carbohydrates or food, we can say, from carbon dioxide and water in presence of sunlight inside the chlorophyll containing cells. So it is very important cells should have the chlorophyll. If it is not having chlorophyll, photosynthesis will not take place. So usually this is chlorophyll is found in the leaves, but it can be present in the green part of the plant. Like if stem is green or other part of the plant is green, that may also have the chlorophyll. Now when light falls, this is captured by the pigments and then carbohydrates are synthesized, right. So that sunlight energy is called as radiant energy, we can say. For photosynthesis, carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll is very important. That will lead to the formation of carbohydrate, and there is evolution of the gas oxygen, right. Plus nutrients are created, carbohydrates, evolution of oxygen, which also helps in purification of the air. And usually these chlorophyll pigments, they are found in the green, we can see cell organelle called as chloroplasts. Now these chloroplasts, they are found in the mesophyll tissue of the leaf. Now this is the leaf. If we cut its section, we can see this is bounded by upper epidermis, this is lower epidermis, and in between this tissue is found. जो ऐसे लंबे लंबे सेल्स हैं इनको हम पैलिसेड बोलते हैं, और ये जो है इनको हम स्पॉन्जी टिश्यू बोलते हैं. इनमें जो डॉट्स मैंने दिखाए हैं वो क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन से पिगमेंट होंगे, क्लोरोफिल, विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ शुगर्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन. अब ये जो क्लोरोफिल्स की हम बात कर रहे हैं, बेसिकली दे आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बिकॉज दे आर हेल्पिंग इन फोटोसिंथेसिस, राइट. सो जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो आगे तीन कैटेगरीज के होते हैं, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलेंस. फाइकोबिलेंस आर मोस्टली फाउंड इन रेड एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. जैसे अभी हमने क्रोमोप्लास्ट की बात की, जैसे मान लीजिए क्लोरोफिल ए है और इसके साथ है क्लोरोफिल ई, बी नहीं है, राइट, देन इट विल बी प्रेजेंट इन द क्रोमोप्लास्ट. कैरोटीनॉइड का हम डिस्कस कर चुके हैं, येलो, ब्राउन या ऑरेंज कलर जो है दैट इज ड्यू टू द कैरोटीनॉइड्स. सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट क्लोरोफिल्स.
Now, chlorophylls actually they are the main pigment which are involved in the photosynthesis. So they are found in chloroplasts, chlorophyll A and chlorophyll. If they are together, they will be present in the chloroplast. If chlorophyll A, chlorophyll C, chlorophyll A, chlorophyll D, chlorophyll A, chlorophyll E, then they may be found in the chromoplast. So chlorophyll A is the main principal pigment which is involved in the photosynthesis. This is also called as universal pigment, and this is found in the chloroplast. Now we'll discuss about structure of the chloroplast. जैसे हमने अभी देखा है कि एक सेल के अंदर ऐसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, तो ये क्लोरोप्लास्ट का क्या स्ट्रक्चर है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. Now this chloroplast is bounded by two membrane. Now this is the outer membrane and this is the inner membrane. First we have to understand this. And this is the space between the two membranes. So here I can show you, this is the outer membrane and this is the inner membrane, and this is the space present between the two membranes. And inner membrane is less permeable, outer membrane is more permeable. एंड ये जो डॉटेड ऐसे दिखाया है पूरा, जैसे ये हमने ऐसे सेक्शन कट किया इसका, देखा कैसे डॉट्स हैं, तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स. यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है मैट्रिक्स. अब इसमें आप देखोगे ऐसे करके, ऐसे लंबे लंबे, ये इनको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड्स. ये थाइलाकॉइड्स ऐसे पाइल अप हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके. कैन शो यू हाउ टू मेक द डायग्राम ऑल्सो. अब ये जो है पाइलिंग, ये वाला जो पाइलिंग हो गया, थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, दिस इज कॉल्ड एज ग्रैनम. प्लूरल हो जाएगा ग्रैना और सिंगुलर हो जाएगा ग्रैनम. अब ये जो बीच में ये थाइलाकॉइड है, फिर ये थाइलाकॉइड है, फिर ये थाइलाकॉइड है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल थाइलाकॉइड, क्योंकि ये मैट्रिक्स में जा रही है और ये पाइलिंग हो रही है. अब आपको ये समझ आ जाएगा. आई विल शो यू द थाइलाकॉइड्स. अब देख लो, ये थाइलाकॉइड है, ये पाइलिंग हो गई, इसको हम ग्रैनम बोलेंगे. ये थाइलाकॉइड है, ये मैट्रिक्स में जा रही है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स वाली या स्ट्रोमल थाइलाकॉइड. अब इसको हम बोलेंगे ग्रैनम, और प्लूरल हम जैसे बहुत सारे ग्रैनम हैं, हम बोलेंगे ग्रैना. क्या बोलेंगे? ग्रैनम. ठीक है. अब ये सारा क्या है? मैट्रिक्स. इसमें एंजाइम्स होते हैं मेनली जो हेल्प करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन. अब जो फूड बन जाता है, जो एक्स्ट्रा होता है, दैट में बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. ये आप देख सकते हैं, राइट. सो वी कैन सी अगेन, ये जो थाइलाकॉइड है ऐसे करके, अब एक थाइलाकॉइड जा रही है ऐसे करके. अब ये जो है इसकी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रेट मेम्ब्रेन. ठीक है. फिर हमने कहा कि ऐसे पाइलिंग हो गई. जो पाइलिंग हो रही है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल थाइलाकॉइड. अब इसको हम बोलेंगे ग्रैनल थाइलाकॉइड. जो ग्रैनम बना रहा है उसको हम बोलेंगे ग्रैनल थाइलाकॉइड. अब ये जो है, ये आप देख रहे हैं ऐसे करके ग्रैनल थाइलाकॉइड का एक पार्ट, ये वाली जो इसकी मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है, इसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट्स. उनका डिफरेंट तरह से ओरिएंटेशन होता है. तो यहाँ पे जैसे ये मेम्ब्रेन नज़र आ रही है हमें थाइलाकॉइड की, ठीक है, इसमें भी फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन है. ये एटीपी फॉर्मेशन का भी है. ये जो है इसका दबा हुआ पार्ट है ये वाला, और ये है इसका नॉन दबा हुआ पार्ट. इसको हम नॉन अप्रेस्ड बोलते हैं, इसको हम अप्रेस्ड बोलते हैं. सो दिस हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ऑल्सो. और इसके अंदर पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स, राइट. एंड दिस फोटोसिंथेसिस जो है पूरा इन पिगमेंट्स की वजह से हो रही है. सो दिस अकर्स इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. सो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दे आर फाउंड इन द मेसोफिल ऑफ द लीव्स. तो ये मैंने सारा थ्योरेटिकल भी लिखा हुआ है. और क्लोरोप्लास्ट का जो शेप है वो वेरी करता है, जैसे लेंथ शेप हो गया, स्फेरिकल हो गया, डिस्कॉइड हो गया, तो ये इसका शेप भी वेरी करेगा. और एक सेल में कितनी क्लोरोप्लास्ट है वो भी वेरी करेगा. तो क्लोरोप्लास्ट ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, कैन बी लेंथ शेप्ड, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक. इसका लेंथ जो हो सकता है 5 to 10 म्यू माइक्रोन. डायमीटर जो है या विड्थ हो सकती है 2 to few माइक्रोन. अब इसमें अपना डीएनए होता है. यूजुअली क्या है कि ये सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें ये ऐसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है. तो सारा जो फंक्शन है वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है. लेकिन क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए होता है, तो इसलिए कुछ फंक्शन ये अपने खुद कर सकता है. तो हम इसको बोलते हैं पार्शियल इंडिपेंडेंट या सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली. क्योंकि अपना डीएनए है तो आरएनए भी है. और इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S है जो प्रोटीन फॉर्मेशन में मदद करते हैं. तो ये डीएनए, आरएनए, राइबोसोम जो 70S होता है, एस्मिन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, जो इसको मदद करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन वगैरह. तो अपने एंजाइम्स होंगे यहाँ मैट्रिक्स में, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स या स्ट्रोमा इज रिच इन एंजाइम विच हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स.
तो अभी डिस्कस कर लिया कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली, बिकॉज इसमें अपना डीएनए है। ठीक है, इनका शेप जो है वेरी कर सकता है, स्फेरिकल, डिस्क्वायर्ड, रिबन शेप। ये मैंने थोड़ा थ्योरेटिकल लिखा है ताकि आप लोगों को थ्योरी भी मिल जाए कि कैसे लिखना है। अब इसका क्लोरोप्लास्ट का नंबर पर सेल वेरी करता है। एक होता है ग्रीन एल्गी का मेंबर जो सिंगल सेल का बना होता है, राइट, विच इज़ कॉल्ड एज क्लेमाइडोमोनस। अब इसमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होती है। ये मैंने शेप भी बना दिया इसकी। ठीक है, और अगर एक सेल, जैसे हमने अभी मीजोफिल टिश्यू कट, जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये ऐसे करके, ये अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, और ये मीजोफिल टिश्यू है, ऐसे करके इसके अंदर ऐसे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब इसमें एक ही सेल के अंदर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट हो सकती हैं। मैं फिर से आपको डायग्राम दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर ठीक है, तो म्यूसिफल टिश्यू में ये हम डॉट नज़र आ रहे हैं ना, ये क्लोरोप्लास्ट है। 20 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं। तो इनका नंबर जो है 20 से 40 वेरी कर सकता है। सो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इट कैन वेरी इन अ सेल। जैसे जो यूनिसेलुलर है, जैसे क्लोरेला हो गया, या ये हमने डिस्कस किया क्लेमाइडोमोनस, जो ग्रीन एल्गी के मेंबर्स हैं, उनमें सिंगल क्लोरोप्लास्ट होती है, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया कि इट इज़ बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। ठीक है, तो ये पूरा हमने डिस्कस कर लिया। और ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं, इनके जो पिगमेंट्स है, जैसे हमने बोला क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट विच इज़ इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। और वो जो पिगमेंट है उसको हम यूनिवर्सल पिगमेंट भी बोलते हैं, एंड दैट इज प्रेजेंट इन द दिस मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड। यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स। तो उनका पूरा एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का ग्रुप बना होता है विच हेल्प इन कैरिंग आउट द फोटोसिंथेसिस। So this is all about plastids and structure of the chloroplast and its function. Thank you for watching my video. If you like my video, please like, share and subscribe.